Introducing Samagri Sharma, 2020 pass out from IIT Roorkee, as well as a member of MDG Space. And currently, he's a, I would say, serial entrepreneur, and currently as a co-founder of TensorFuse, as well as VIP. And he was selected into YC in 24 batch. Okay, so let's start MDG talks. So, Hi guys, hi Samagra, how are you? How have you been? all good यार, सब बढ़िया. I'm moving right now, तो बस get involved in Uh, that. But yes, you told me that you're shifting your house, right? yeah, actually, so my co-founder got married Ah, few months back. So now his wife has taken my place in our apartment, and I got kicked out. So now I have to look for another apartment. So that's why I'm moving into a new place. Yeah. please I wish actually him my, a hearty congratulations from our end Yes, for वो getting गम married. yeah, yes. इतना done गम done क्या था yeah. ना? With how has your journey been while this transition from IIT Roorkee to the corporate world? So, like, you explored a lot of tech during your time at IIT Roorkee, right? So, and you also even beyond tech, you've explored a lot of things. I think you were in the dramatic section, and apart from that, you had various other interests as well. And Hmm. so, first of all, I would want to ask you, what are your biggest takeaways from your days at IIT Roorkee? Biggest takeaways as in, okay, so there are good things too, bad things too. Uh, so the good things are that I got to explore a lot of stuff. I think, Mhm. uh, so my philosophy in life is that in your 20s and early, like late teens and early 20s, your only job is to explore a shit ton of things, try your hand at Mhm. everything and not narrow down yourself into just one thing. And I think I was able to do pretty well. I think I had a great section in, like, both MDG and RAMS were very great, but MDG was very technical folks and थोड़ा ज़्यादा बकचोदी नहीं करते थे. They were थोड़ा serious folks. हाँ. True. But in dramatics they were like crazy folks. तो हम लोग बहुत ऐसे बकचोदी भी करते थे, and then we were doing a shit ton of things, and we were doing hard things. So actually, a lot of people in IIT are good technically. So technical stuff is not that hard. I learned a lot of things from my peers at RAMS around how to take responsibility, how to do hard stuff without actually Mhm. criving about it. Hmm. If you are in IIT, you should spend as minimum time as possible in your dorm room, Hmm. and True. 90% of your time should be outside, either in the lab with your friends, trying out different things. The campus is so good. कभी यही है कि यार लाइफ में you have to continuously redefine yourself, redefine your identity, and college is the best place to do that because it is so low stakes. Like, I know people are worried about getting a job and getting placed and internship season. So the fun thing is I didn't sit for my internships, I didn't sit for my Oh. placements. So I was in the top 5 of department rank, तो मेरे को internship वहां से मिल गई थी. And Yeah. finally I was not in Roorkee. Final year I was at Hmm. UC Santa Barbara working. तो प्लेसमेंट में तो वैसे भी नहीं बैठ पा रहा था, बट आई हैड अ पीपीओ फ्रॉम अडोबी आल्सो. तो वहाँ वो बच गया था. लाइक पीटर नॉविक करके एक इंसान है, Hmm. ही इज द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट गूगल एंड स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर. तो उसकी ऑर्ग में मेरा जीसॉक लग गया था. और जो और लगा भी मेरा इसलिए था क्योंकि एमडीजी के जो मेरे दोस्त थे, जैसे रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, रोहन भाटिया, ही वाज आल्सो इन एमडीजी. ही वर्क्स एट गूगल यहाँ पे माउंटेन व्यू में, बट वो यहीं एसएफ में रहता है थोड़ी दूर. तो आई थिंक ही एंड मी बोथ वर वर्किंग ऑन द सेम रेपो, तो उसके साथ काम करने के कारण मेरा वो हो गया था. तो एट अर्ली टाइम से आई वाज नॉट एक्सपोज टू दी जो कॉलेज का जो कल्चर होता है ना कि कॉम्पी करो कॉम्पी Hmm. करो कॉम्पी करो, उससे उसके मैं घुसा ही नहीं कभी, मतलब. Hmm. तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड, नहीं तो मैं थोड़ा सैड हो जाता मेरे साथ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, yeah, that's the takeaway, man. Explore as much as possible while you are in college. Don't spend Mhm. time in your dorm a lot. Hmm. Make as many diverse groups as possible. और थोड़ा Mhm. ये क्रिएटिव लोगों के साथ घूमना चाहिए, जो डांस के लोग होते हैं. Hmm. थोड़ा उनको मस्ती करना True. आता है लाइफ में.
है ना? True. So, do you like to share some of your experiences in the GSOC as well as your BTP in foreign? Like, what are the Hmm. things that you gained from them, and how was the entire experience? एक तो मेरे टाइम पे जो जेनसेक अकेड्स थे, सारिम खान, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट जेनसेक अकेड दैट एवर लिव्ड इन रुड़की. उनने ये स्टार्ट किया था कि we should allow people to go to foreign to do their BTech projects. And fortunately, me and Rohan, जिसकी मैंने बात की जो MDD का है, we were the first folks to go there. Actually, before that, I got a internship offer at DeepMind. My internship was selected, and Nice. but I couldn't go because of our great department. So DeepMind की internship was from August 1st to October end. Okay. And it was during 3-1. 3-1 में जाना था मेरे को, और अपना सेमेस्टर चालू जाता है जुलाई में, राइट? तो I was not at all allowed to go. मेरे को NOC नहीं दी और बहुत शिट हुई थी, तो I lost that opportunity. But ये जो फाइनल वाला जो था कि BTP वाला जो है, फॉरेन BTP वाला, तो उसके लिए तो तारिम भी बहुत लड़े थे. तारिम वाज वेरी गुड. हमारे बैच में एक अभिषेक है, वो he also fought for it. Then गंगोपाध्याय सर एंड धर्मेंद्र सर fought for it. तो फाइनली मेरे को, हम दोनों को जाने का मौका मिला. एंड देन यहाँ पे कैसे लगा, वो तो यही था कि यार मेरे को मैं जब से मेरा एमा जीसॉक हुआ था, तब से आई वाज इनटू मशीन लर्निंग एंड एआई. तो मैं आई वाज एक्टिव, आई वाज शोइंग माय वर्क ऑन द इंटरनेट. तो अर्पित सर हैं एक यूसीएसबी के, वो शायद 2014-13 के रुड़की पास आउट ही है. ही डिड हिज पीएचडी फ्रॉम प्रिंसटन से उन्होंने पीएचडी की थी, and he recently had become an assistant prof. So he was on the active lookout for first few research assistants. तो हम दोनों का वो हुआ, बात हुई साथ में, and we decided to work together. तो फिर उन्होंने foreign BTP दे दिया, and then यहाँ पे इन लोगों ने convince कर दिया, तो I came to UC Santa Barbara. It was a good experience. थोड़ा culture shock था, काफी difference था हमारे culture में, तो that was good. But काम वाइज काफी मजा आया. I was with my best friend, तो इतना lonely भी नहीं लगा. Usually when people come to the US, it is थोड़ा lonely, but I came with my best friend, so it was good. We enjoyed a lot. We used to do all the shenanigans together. तो काफी फन था. GSOC में एक्चुअली ये था कि तो एक साल मैंने GSOC किया, नेक्स्ट साल मुझे GSOC का ऑर्गेडमिन बना दिया था उन्होंने. तो आई डिड GSOC एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, और फिर जब मैं थर्ड ईयर में था तो आई वाज द ऑर्ग एडमिन ऑफ द सेम ऑर्ग. दैट वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस. मैं सेकंड ईयर में ही था एंड आई वाज डूइंग दिस एंड इट फेल्ट वेरी मतलब थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लग रहा था, क्योंकि ये दिस वाज प्री LLM एरा, है ना, जब LLMs आए नहीं थे 2016 17-18 में. तो दैट टाइम मशीन लर्निंग के साथ साथ ट्रेडिशनल एआई भी पढ़ते थे लोग, जैसे तो ये एसएटी सॉल्वर्स होते हैं और कुछ होता है, लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसियन प्रोबेबिलिटी वाले एल्गोरिथम्स होते हैं. तो that was also a fun experience. Yeah. That surely is intimidating at the first, like when you do not have as much experience and you have a large code base in front of you. So yes, initially yes, it is a bit scary unless और तब तो कोडिंग एजेंट्स भी नहीं होते थे. तुम्हारी लाइफ तो बहुत इजी हो गई यार. True. तब तो हमें हाथ से कोड लिखना पड़ता था भाई. True, very true. पाइथन बात है. अच्छा पहले EC और CS की बहुत सारे कोर्सेज साथ में होते थे. तो ये इनिशियल कोर्स भी साथ में होता था, तो हमें जावा पढ़ाते थे. तो जावा वहां भी पढ़ी हुई थी, फिर जावा में इतनी एप्स भी करते थे. और तो क्या है, जावा और एआई वाज सच अ यूनिक कॉम्बिनेशन. कोई और नहीं करता था बाहर लोग पाइथन पढ़ते थे, तो उसमें कंपटीशन भी नहीं था. और मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना बढ़िया था, वो उसको भी जावा आती थी, बट ही डिडंट कंट्रीब्यूट टू compete with me in the same repo. So he sacrificed himself and he went to apply for Python. I applied for Java. And got in because I was the only person, and there were other proposals, but उन्होंने एक भी line of code नहीं लिखा था उस repo में. It was easy to get in.
बट हाँ हम्म, मतलब अगर रोहन compete करता, हम दोनों सेम उस पे compete करते, तो आई थिंक शायद रोहन को मिल सकता था, क्योंकि ही इज वेरी मेटिकुलेट। कि मैं थोड़ा तब भी वाइब्स में कोड करता था मैं, कि हाँ ठीक है। yeah. बट तो उसका उसका जीसॉक नहीं हुआ था, डिस्पाइट हिम हैविंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशंस इन द एमा पाइथन रेपो। और Okay. So, आई थिंक उसका उसका रीजन ये था कि यू आल्सो नीड टू डू सम, क्या होता था कि Outreach. जो एमा पाइथन वाला था ना, वो कोई और मैनेज कर रहा था, बंदा नॉर्वे नहीं मैनेज कर रही, नॉर्वे जावा वाला कर रहे थे मैनेज। उसमें कोई और कम्युनिटी का ही बंदा मैनेज कर रहा था, एंड यू हैड टू, तब ओपन सोर्स में जीसॉक में ऐसा होता था कि तुम्हें यू हैव टू मेक कनेक्शंस और टॉक टू दी ऑर्ग एडमिन, उनके साथ थोड़ी पॉलिटिकल, मतलब समझ रहे हो ना, वो बातें बातें करनी पड़ती थी। और रोहन क्या है, अपना काम करके निकल जाता था, तो आई थिंक दैट वाज देयर। तो yeah. but it was fun. Yeah. Like after graduating, like you had worked for a few years with Adobe, right? Hmm. Yep, and then I say you joined Aerotime, and finally you founded TensorFuse, and now you're working on WIP. So the constant trend is after a few years you try to pivot from the current domain of working to a relatively challenging or a new domain. So what do you think drives you through all this? Or how do you think you navigate through different domains and decide when it's the right time नहीं to pivot to a new नहीं domain? नहीं, Or तो दैट इज नॉट, वो बाहर से ऐसा लगता है, अंदर से मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हाँ तो 2020 में कोविड आया, राइट? मेरे को पीएचडी ऑफर था यूसी सांता बारबरा से, आई हैड अ पीएचडी ऑफर। तो आई वाज ऑलमोस्ट 100% श्योर कि जाना है उधर, है ना। बट तो रोहन चला गया था, रोहन ज्वाइंड इट, रोहन हमें साथ में ही थे, दोनों को पीएचडी ऑफर आ गया था। एंड वी वांटेड टू गो देयर, बट वो कोविड हो गया था। तो फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी वी वर सपोज टू डू फ्रॉम होम। तो एक साल तक क्योंकि वी ग्रेजुएटेड इन मई 2020, 2020 वाज पीक कोविड, सब कुछ बंद था, है ना। तो अब उसके बाद रोहन ज्वाइन, मेरा मन था कि यार मैं रिमोटली तो एक साल नहीं कर सकता, तो लेट मी डिफर इट। तो मैंने 2020 में डिफर कर दिया था वो 2021 ज्वाइनिंग के लिए। एंड देन आई स्टार्टेड, मेरे पास अडोबी रिसर्च का पीपीओ भी था, द लैब वाज वेरी गुड, वी आई वाज पार्ट ऑफ, मतलब बहुत ही एक बढ़िया से प्रिंसिपल साइंटिस्ट है बालाजी कृष्णमूर्ति, ही डज गुड वर्क एट अडोबी। And so I was a part of that lab. It's called Media and Data Science Research Lab, MDSR lab. So उसमें था, तो I was like कि let me work here for 1 or 2 years, and then I defer तो कर ही दिया, तो I will join, है ना। तो फिर मैं जब काम करने लगा तो मेरा पीएचडी से मन उठ गया, मतलब 6 साल तक I could not do research, and रोहन की भी एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे मन नहीं किया जाने का, तो देन आई सेड नो टू द पीएचडी ऑफर 1 ईयर लेटर। तो इट वाज प्योरली ऑर्गेनिक, मैंने कुछ नहीं सोचा था पिवट करने का। तो मुझे पढ़ाने का शौक था, इसलिए मैं पीएचडी करना चाहता था, बट आई रियलाइज कि रिसर्च में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है, एंड रिसर्च इज वेरी ऐसे थोड़ा आइसोलेटिंग सा इन द सेंस कि माय वर्क डजंट गेट इनटू द हैंड्स ऑफ पीपल वेरी क्विकली। तो फिर मुझे खुद का कुछ करना था, तो पहले मैंने डिसाइड किया लेट्स फाइंड some people I like to work with, I would like to work with and work with them on some startup like thing. तो जो why I joined Aerotime was क्योंकि Aerotime में के दोनों फाउंडर्स बहुत तगड़े थे, तो दोनों लोगों को मैं थोड़ा सा जानता भी था, और देन आई रिस्पेक्टेड उनका प्रीवियस वर्क, तो इसलिए आई जॉइंड Aerotime for a while in order to learn कि हाँ स्टार्टअप्स में क्या होता है। मैं I didn't want to jump head into something which I didn't know about, है ना। तो फिर I worked till Aerotime and it was clear that 1-1.5 साल बाद I would start my own, है ना। तो then also when I left Aerotime, it was not a pivot, it was already decided from years ago that I would start. फिर TensorFuse और WIP में ऐसा कोई pivot नहीं है, I am working on both of them. I think PhD का one decision was when I decided to pivot, but apart from that, everything else was very natural. Okay. There's a lot of build up. You don't see this in other people's lives because this would sound very blunt, but the thing is people are very afraid to take risks. That's true. That's very in true. life in general. I have zero fear in starting from scratch. Itne time I have started from scratch.
सो आई थिंक रुड़की का एक कोई पेज है जिसमें उन्होंने हमारी स्टोरी डाली थी. आई डोंट रिमेम्बर व्हाट पेज दैट वाज. Yes, yes. IIT Roorkee alumni. There is a page. Yes, they keep on हाँ posting उसमें stories about. Yeah. है ना, तो उसमें अगम अगम की स्टोरी, मतलब अगम ने वो उसका लिंक्डइन पोस्ट वायरल हुआ था, वहां से उन्होंने स्टोरी हाँ। निकाली. तुम वो स्टोरी देखना. तो हमारे बैंक अकाउंट्स में हमने सब जॉब वॉब छोड़ के वी आर कंटिन्यूअसली एक्सप्लोरिंग. तो तब एआई नया आया था. टोकन्स आर नॉट एज चीप एज दे आर टुडे. दे वेरी एक्सपेंसिव. तब हम लोग प्रोडक्ट्स बना के हॉटस्टार, खाता बुक, ड्रीम 11 हमारे कस्टमर्स थे, एंड वी आर स्पेंडिंग आवर ओन मनी. ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गया था. 300-400 रुपए बचे होंगे और अगम का भी 1,500 रुपए बचे होंगे व्हेन वी गॉट इनटू आईसी. तो मुझे थैंकफुली मेरे मम्मी पापा ने इतना क्वेश्चन बना रखा है मेरे लिए कि दे डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम मी. दे ऑलवेज टेल मी कि यू ट्राई टू टेक एज मेनी रिस्क एज पॉसिबल विथ योर लाइफ. तो ये जो तुम लाइफ स्टोरी देख रहे हो ना, ये तुम्हें यहाँ पे बहुत कॉमन मिलेगी. एसएफ में आओगे तो तुम हर बंदे को देखोगे, किसी ने स्टैनफोर्ड छोड़ रखा है वाईसी में आने के लिए, किसी ने हार्वर्ड छोड़ दिया, किसी ने एमआईटी ड्रॉप ऑफ ले लिया, किसी का एडमिट आया था वो गया ही नहीं, वो हाई स्कूल से इधर आ गया, है ना. किसी ने 10 इंडस्ट्रीज ट्राई कर ली, अब वो स्टार्टअप बना रहा है एआई में, है ना. तो यहाँ पे तुम्हें पीपल आर नॉट अफ्रेड टू टेक दैट लीप, बिकॉज यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे देयर इज some financial security and some job security that everybody has. इंडिया में सबके पास नहीं होती है, बट जो हमारे कॉलेज के लोग रहते हैं उन सबके पास सिक्योरिटी रहती है, बट स्टिल दे डोंट टेक रिस्क. कुछ लोगों का जेन्युइन है कि जैसे घर पे दे आर दी ओनली अर्निंग मेंबर, तो आई अंडरस्टैंड दैट दे आर थोड़ा सा रिस्क एवर्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक 70% ऑफ पीपल कैन टेक रिस्क, बट दे डोंट टेक रिस्क, है ना. और क्या रिस्क की लाइफ में ऐसा है कि तुम्हारी फटती रहती है. मतलब स्टार्टिंग वर्किंग ऑन स्टार्टअप इज नॉट इजी. यू आर टायर्ड हाफ द टाइम, यू आर स्केयर्ड हाफ द टाइम. कभी कुछ फट रहा है, कभी कुछ फट रहा है. बैंक बंद हो जाते हैं भाई. सिलिकॉन वैली बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, वो बैंक करप्ट हो गया था. उसमें लोगों का पैसा पड़ा हुआ था, उनकी फट गई कि हमारी अगली पेरोल कैसे. ऐसी चीजें, थिंग्स हैपन व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल, बट उसमें मजा आता है. यू हैव टू solve them, you have to search for solutions, you have to figure out things to overcome them. But I think the main thing is कि लोग वहाँ पे रिस्क नहीं लेते. They are happy with what they are doing. ज्यादा से ज्यादा वो कंपनी स्विच करते रहते हैं. मतलब ये भी मैंने बहुत देखा है. आई तो उसके लिए तो मेरे मन में और भी कम रिस्पेक्ट है कि तुम हर 2 साल में कंपनी स्विच करो. यू आर नॉट एट ऑल thinking about what you want to work on, you are just thinking about your paycheck, which can be a philosophy for life, but I think it is not a very fulfilling philosophy of life कि तुम अपने paycheck को optimize करने के लिए कर रहे हो, instead of figuring out कि मुझे अपने अगले 30 साल काम करना है लाइफ में. देखो काम तो करना है, भले तुम अमीर हो जाओ चाहे गरीब रह जाओ, है ना. काम तो करना ही पड़ेगा. काम के बिना तुम मेंटली फिट नहीं रह सकते. यू विल बी वेरी मेंटली, तो मैं बहुत बुरा लगेगा अगर तुम कंटिन्यूअसली काम नहीं कर रहे. इवन इफ यू आर रिटायर्ड, इवन इफ यू आर रिच, यू विल बी डूइंग समथिंग. तो 10 साल लगा के, 15 साल लगा के पहले फिगर आउट कर लो कि किसमें मजा आता है. उसके बाद ये स्विच करके तो भाई थोड़ा, आई डोंट लाइक दैट वे ऑफ वर्किंग. बट इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट वर्क्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर मनी. इफ यू वांट टू क्लाइंब अप, है ना, ठीक ठाक डिसेंट पैसा बनाना है तो. बट या तो मैं पिवट नहीं करता हूँ भाई. इट इज वेरी नेचुरल एवरीथिंग जो होता है. हाँ, ओके, राइट, है ना. लाइक दिस थिंग तो एक्चुअली इज देयर. मतलब रुड़की में अब तो और ज्यादा हो गया, मतलब सीपीडीएसए का कल्चर आई बिलीव. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस चल रहा था. हाँ ठीक. यार एक बात बताओ, तुम्हें सारी चीजें तो क्लॉड कर देगा तुम्हारे लिए, तुम क्यों कर रहे हो सब भाई? मुझे समझ में नहीं आता, बट चलो ठीक है. मतलब देख, उन लोगों के लिए जेन्युइनली अच्छा है जिनको उसमें मजा आता है. जैसे मेरे बैच में एक कन्हर था, कन्हर नाम का बंदा था, वो ही वेंट टू आईसीपीसी आल्सो. भाई ही वाज अ नेचुरल एट इट. वो आई डोंट थिंक इतनी मेहनत भी करता होगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, बट ही लाइक्ड सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स. तो अगर तुम कन्हर जैसे हो तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यू मेक अ करियर आउट ऑफ दैट. इट इज एन अमेजिंग थिंग. बट जो बाकी के लोग जो इंटर्नशिप और उसके लिए करते हैं, दैट कल्चर आई डोंट लाइक. आई रिस्पेक्ट कन्हर अ लॉट. ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आई हैव मेट. और वो मतलब वो आई डोंट थिंक वो कंपटीशन के बाहर टीपी करता भी था. वो जस्ट सीधे कंपटीशन में बैठता था, वहीं सॉल्व करता था.
एंड उसका हो जाता था। ऐसे ही एक बंदा था समर्थ जोशी, ही इज इन नेदरलैंड्स राइट नाउ, इन एम्स्टर्डम में, शायद एम्स्टर्डम वुडन में। Okay. तो he was very good at it and he loved it. Hmm. So I think if you are like that then it's good. बट तुम बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे बगल वाला भी कर रहा है और तुम्हें मजा भी नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक इट इज गुड। Actually. Actually, तो ऐसा ऐसा हो गया ना कि most of the software companies which are coming to recruit in the campus, उन्होंने अपना एक ट्रेंड, उन्होंने मतलब more or less एक पैटर्न ही बना दिया है कि the recruitment is just totally revolves around CP and DSA. So people in the just in order to receive a good placement or a good internship, what they do is they try to dedicate a lot of their time into CP and DSA, irrespective of the fact whether they enjoy it or not, because ultimately everyone wants a job. Or whether they even I've seen people who actually do not even have idea of what software engineering actually is. They do not even have any experience with development, but yes, they just they just spend time doing DSA and CP, and they actually end up getting really good software engineering roles. हाँ, फिर उसके बाद जैसे जैसे अब मैं बताता हूँ तुम्हें, सौरभ क्वाडाई छोड़ के आया हमारे पास। क्वाडाई में वो 3-3.5 करोड़ कमा रहा था, है ना? ठीक है, बट इफ ही डिसाइड्स टू कम हियर, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 10x है भाई। मतलब वो कहीं भी हायर हो जाएगा आराम से, एंथ्रोपिक, ओपन एआई, हर जगह हायर हो जाएगा, बिकॉज ही हैज वर्कड ऑन समथिंग सो कटिंग एज। दिव्यांशु जो है वो बंदा है, वो भाई डेवऑप्स में इतना तगड़ा इंसान हो चुका है अब, मतलब आई थिंक उसकी भी वैल्यू 100x है देन व्हाट ही इज अर्निंग। 100x बोलूंगा मैं, क्योंकि वो तो और रेयर काम है, जो वो करता है वो वैली में भी बहुत कम लोग कर सकते, है ना? तो एंड व्हेन पीपल वर्क ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, दे आर टेकिंग अ पे कट, बट उनकी जो पर्सनल ब्रांड है, उनकी जो हिडन वैल्यू है, लेटेंट वैल्यू है, बहुत ज्यादा हो गया। अब जैसे मान लो वो यहाँ पे जॉब सर्च करने निकलेगा यहाँ पे आके, तो उसको ऐसे ऐसे ऑफर्स आएंगे उसने सोचे भी नहीं होंगे इंडिया, है ना? वो थोड़ा आई वुड लाइक कि अगर आप टेंसरफ्यूज की अपनी विजन बताइए कि क्या है, मतलब टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस एंड माइट नॉट नो अबाउट इट। या TensorFuse सर्वलेस जीपीयू ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, तो नॉर्मल कंज्यूमर को उसका मतलब समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके लिए यूज नहीं आता। बट जैसे क्या होता है कि फ्रॉम ऑल दीज क्लाउड प्रोवाइडर्स यू गेट नॉर्मल जीपीयू मशीन तुम्हें मिल जाती है। हाँ, सर्वरलेस भी नहीं मिलता, बट जीपीयू, इनफैक्ट जीपीयू भी तुम्हें रेंट करना पड़ता है। एंड जब एक पॉइंट के बाद व्हेन यू आर मैनेजिंग 100-150 जीपीयूज, तुम्हारी पूरी जीपीयू फ्लीट बनती है, देन यू नीड sophisticated algorithms to do load balancing and to route requests and networks, and तुम्हारे जो अलग अलग मॉडल्स चल रहे हैं उनको कैसे बैलेंस करना है, उनका वर्कलोड, दैट बिकम्स वेरी हार्ड। तो वो सारा जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज TensorFuse। एक चीज, लाइक हाउ वाज द वाईसी जर्नी, लाइक हाउ वाज इट गेटिंग इनटू वाईसी, और आपकी पोस्ट थी जिसमें आपका था कि वी पिवटेड 10 days बिफोर आवर डेमो डे। हाँ। अरे तो हाँ, तो ऐसा था कि यार जैसे है ना, इंडियन इन्वेस्टर्स आर ट्रिकी, मतलब आई डोंट लाइक देम, बट आई कांट बी वेरी ब्लंट, सो आई एम जस्ट सेइंग कि दे आर ट्रिकी इन द सेंस कि दे डोंट डू गुड प्रैक्टिसेस, दे वेस्ट shit ton of your time, and they don't know how to judge. So most of the VCs have not built companies. Then यहाँ पे if you talk to people, they've all built companies and then they have become VCs, so they have an operational mindset. They have the mindset of, they understand what it takes to build a company. But VCs in India are MBA folks who have not built a single company. Mostly it is them. क्या हुआ था कि we were working on a product which was analyzing customer feedback from all the sources that are available, all the unstructured data here, so Play Store reviews, customer calls, everywhere. And we were assimilating, that was our product. So we had closed Disney Plus Hotstar, है ना? We had closed Khata Book, we had closed Dream11, है ना? फैम पे देखो, फैम पे और ट्रायमेक्स का ऐसा है कि वो हमारे सीनियर से, तो हम कुछ भी बनाते थे वो खरीद लेते थे, है ना? दे वर सच गुड सब, मतलब हाँ, तो बेसिकली लोगों ने कहा नहीं, they would actually use it and make it better. So the best thing in my journey, entrepreneur journey, is that I have had very good seniors. मतलब ऋतुराज का, स्टारिम का, केटी का, कुश तनेजा का और सक्षम का, जितना कंट्रीब्यूशन हमारी जर्नी में है उतना शायद किसी का नहीं होगा,
है ना. That is the good thing. हम कुछ भी बनाते थे, they would at least ask their team to try it out. तो लोगो लगाने वाली बात नहीं, they would actually try it. अगर उनको लगता है कि इसको कुछ improve करके हम use कर सकते हैं, तो they would do that also. They would also give us ideas of what they will pay for. तो है ना. Sorry, I forgot the question. क्या बात कर रहे थे? इसी चीज Your YC journey basically. हाँ, अच्छा तुम पिवट क्यों किया? अच्छा, तो क्या, तो क्या हमारा खर्चा बहुत हो रहा था एंड इट वाज ट्रेमेंडस. अबे खाता बुक में दिन में 4000 कॉल्स आते हैं, है ना. और तब ट्रांसक्रिप्शन महंगा था, है ना. ट्रांसक्रिप्शन वाज एक्सपेंसिव और एलएलएम्स वर और एक्सपेंसिव. ये 2023 का बता रहा हूँ. चैट जीपीटी लॉन्च नहीं हुआ था, उनकी बस एपीआई एग्जिस्ट करती थी, है ना. तो इट वाज दैट टाइम. ये चैट जीपीटी लॉन्च हो गया था बट वो इतना खास नहीं था. बट एपीआई वाज वेरी एक्सपेंसिव व्हाटएवर द स्टेट वाज. तो यार अब उस पे पैसा नहीं देते थे लोग, क्योंकि तब ये कंसेप्ट चलता था, इंडिया में चलता था कि भाई ये तो जीपीटी रैपर है ना. और जीपीटी रैपर्स हैव डन सो वेल इन बिकॉज nobody will pay for the token. What is value? ऐसे तो OpenAI भी NVIDIA रैपर हो गया या AWS रैपर हो गया. एवरी कंपनी इज एन AWS रैपर. डेटाबेस के ऊपर तुम लेयर ही तो लिख रहे हो. तो तब हमें ऐसे पैसा नहीं मिल रहा था इंडिया में. और बाहर से तो यू कांट रेज इफ यू आर नॉट इन वाईसी, यू कांट रेज फ्रॉम आउटसाइड. तो फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ा स्मार्टली खेला. वी क्राफ्टेड आवर pitch to suit what customers want, but to optimize to raise money. It was a genuine problem. Evals were a genuine problem. But हमने evals को ऐसे pitch किया जो VCs को भी समझ में आता है. Evals was something like that. So evals were very growing. Nobody knew how to solve it, and people always had different approaches to solve it. But I was of the opinion, जो मुझे लगता था कि एक बार मॉडल्स विल गेट बेटर, तो ये ईवल्स वाली प्रॉब्लम है ना, लोग खुद इन हाउस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बट दैट वाज नॉट द कंसेंसस एट दैट टाइम. तो वी ट्राइड रेजिंग एट दैट टाइम. फिर हम लोग उसकी मदद से हमारा वाईसी भी हो गया था, बिकॉज द वे वी वर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम वाज जेन्युइन. बट मुझे बिलीव नहीं था उस प्रॉब्लम पे. आई हैड अ सॉल्यूशन टू दैट. वी गॉट कस्टमर्स आउट ऑफ दैट एज वेल. I knew कि as and when these models get better, तो LLM as a judge के evals होंगे और लोग multiple models को use करके evaluations करेंगे. और इनफैक्ट जो evals का इनका framework होता है वो खुद models लिख देंगे as per the data. That was my genuine thing, जो कि फिर हमने observe भी किया. 1.5 महीने तक we tried selling this, तो we observed it and then we pivoted to TensorFuse because you can't work on a problem you don't believe in. तो जब fundraise करने की बारी आई, I pivoted. We pivoted 10 days before demo day, I think, है ना. And then we pitched TensorFuse, which was well received by a lot of people. हाँ, तो मेरे को 300 कुछ मीटिंग्स लगी थी to raise funds, जितने भी हमने raise किए, है ना. And उसके बाद हाँ, तो that's why. और ये प्रॉब्लम हमने तब फिगर आउट की कि हम ट्रायोमिक्स के साथ काम कर रहे थे, तो उनको वो they were building their own models for healthcare, क्योंकि तब OpenAI के पास HIPAA compliance वगैरह नहीं होता था. They needed their own models. तो I think they shaped a lot of our product. I am telling you, ट्रायोमिक्स और एमपी का जितना कंट्रीब्यूशन TensorFuse में है, उतना I think और किसी का नहीं है. IC में तो I met a lot of good folks. I realized what is important. I realized how I should think about my work. मतलब लाइफ में कैसे ड्रिफ्ट नहीं करना है ना. All those things I realized. How to be fearless about things. How you should look at money. I think as Indians we have क्योंकि we come from a very poor backgrounds, right? As a country we are not that rich and there is not that abundance. So we approach startups in the same way. We raise some money and then we try to be very frugal about it, which is not the right way to approach startups. Startups are supposed to be about growth. Startups are supposed to be about, even if you're burning money, burn shit ton of money, but achieve growth. So I learned that. I learned how not to focus on the wrong things, like don't hire too many people. Everything should be organic. Don't try to scale before you hit PMF. All those things are very crucial lessons which YC keeps on posting, but you learn them only when you live through them. So that is there. True. Apart from
apart from that, I met, मतलब YC network is very strong, so I met a lot of folks. I met a lot of role models. तो मैं Airbnb के founders के साथ काफी बात की, Instagram के founders, Rippling के founders, Reddit के founders. Being at YC, I realized that जितना भी मैंने shift switch किया है, PhD to job to all those things, I think I made the right choice. Looking back. Okay, caveat associated with that, you can do a job as long as you know that that is the work you want to do. Right? Yes, that is. तो जॉब करो, बट जॉब पे सिर्फ इसलिए मत करो कि पेचेक अच्छा है. मतलब तुम देखो, तुम्हारे 20s, देखो जितना तुम फेल हो सकते हो 20s में, उतना ज्यादा तुम्हारे पास उतना ज्यादा फेल तुम बाकी डेकेड में नहीं हो पाओगे. 30s में तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारा पार्टनर होगा, तुम्हें 10 चीजें सोचनी पड़ेगी. 20s में जितना तुम फ्री हो ना, टू एक्सप्लोर, टू फेल, टू एक्सपेरिमेंट, टू डू थिंग्स दैट ओनली डेयरिंग पीपल कैन डू, वो तुम कर सकते हो और तुम दोबारा शुरू कर सकते हो. तुमने 4 साल, मान लो, जैसे मेरे को कुछ लोग अपने उसमें इतने सही लगते हैं, जैसे एक रमांशु मिश्रा है, तुम सर्च करना हमारे उसमें, CS, हमारे बैच में CS का है. ही लेफ्ट टेक, वो म्यूजिक बनाता है, विच इज गुड. तुम इक्लिप्स नोवा को तो जानते हो, ही हैज बिकम फेमस. ही वाज इन आवर बैच, IIT दिल्ली में हमारे बैच का था वो उसी टाइम, है ना. एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल जो कि, अब बिस्वा देख लो भाई, वो पूरा अरे तुम मानोगे नहीं, हम लोग इंटर IIT जाते थे ना, तो ड्राम्स में, तो ये सब लोग हमारे साथ compete किए हुए हैं. ये तुम्हारे रंजन भैया जो है, कोटा फैक्ट्री वाले रंजन भैया, जानते हो? है ना, उनके. तो जो मेरा जो फर्स्ट इंटर IIT था, मैं फर्स्ट ईयर में था 2016 में, है ना. तो मेरे अपोजिट में हम लोग, मैं तो स्ट्रीट प्ले में था, वो रंजन भैया स्टेज प्ले में थे. जो हमारी स्टेज की टीम थी, दैट वाज कंपीटिंग विद रंजन भैया टीम. और रंजन भैया तो फिर उन्होंने तो सामा बांध दिया था रंजन भैया ने, है ना. और फिर ये खड़गपुर वाले जो पूरे TVF वाले जो पूरा डांस खड़गपुर है, उस डांस खड़गपुर के लोग आते रहते, है ना. तो आई थिंक द point is not that you should do a startup and you need to create job. Your goal should be to figure out what you love. और अभी नहीं पता है ना, अभी नहीं पता है तो एक्सपेरिमेंट करते रहो. बेस्ट yes. नहीं है ना, नहीं पता होना इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट. ठीक है, अब जॉब लग गया तो 1 साल करो जॉब, देखो तुम उसमें मीनिंग फाइंड कर पा रहे हो कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं. साइड में कुछ और एक्सप्लोर कर लो. जॉब के साथ ये भी चीज होती है कि जैसे अगर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जॉब है, तो काम तो है नहीं वहाँ पे, कुछ 1-2 घंटे दिन में काम करना पड़ता है ना. तो उसके बाद यू हैव 4-5 hours, यू कैन एक्सप्लोर अदर साइड प्रोजेक्ट्स, यू कैन डू स्टफ दैट यू लाइक. तो वहां पे करो, वैसी चीजें करो. तो दैट इज देयर.